Dear students, Assalamu alaikum. Today I will be covering your experiment number 12 for your digital logic design lab, and its title is to design a 2-bit counter using JK flip-flop. Previously you have covered RS and JK flip-flops, so I hope that this concept is going to be pretty easy for you. But however, I do know that some of you might not have gone through the sequential circuits in your theory lecture, so I will try to cover it up a bit. So to design the JK flip-flop counter, you will obviously require some built-in ICs of JK flip-flops available in your multisim, and you will require a virtual breadboard to implement this. Now to understand the theoretical concept of a flip-flop, of a counter, you need to know that what is basically a counter, since it is involving the use of flip-flops, as you can see in these figures. That's why we call it a sequential circuit, right? Now, as the name suggests, that a counter must be something that actually counts something. Now, what does it count? It actually counts the input pulses. Now, this is a very significant concept, or a very significant device utilized in computer systems, because we have a lot of applications which are to be performed or performed simultaneously within a computer system. So that's why a counter is used to count the number of input clocks or pulses, so that we can coordinate all the different tasks or all the different applications being performed in a computer system simultaneously. बिकॉज उसके अंदर हमें ये डिसाइड करना होता है कि दैट कितनी एप्लीकेशंस जो हैं वो इस सिंगल क्लॉक साइकिल में ऑपरेट करेंगी, एंड आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक साइकिल्स द सेकेंड एप्लीकेशन मस्ट रन. सो इसको हम इंटरप्ट्स वगैरह और भी डिफरेंट बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम काउंटर्स को यूटिलाइज करते हैं. एंड देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ काउंटर्स एज यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड. एक मैंने मेंशन किया हुआ है with the name asynchronous counter, and other is the synchronous counter. There is a basic structural difference between both of these, or applicational difference भी है obviously. Asynchronous counter is a bit simple version of a counter, and it has a simpler structure, but however it has a drawback that it is quite slow. But however, synchronous counters जो हैं, these are quite fast, and there are a few structural advantages of this synchronous counter over the asynchronous counter. However, there are still several applications depending upon that हमें outputs या हमें किस purpose के लिए counters की ज़रूरत है, due upon which we can decide upon that हमें asynchronous counter use करना चाहिए या synchronous counter use करना चाहिए. So let me tell you that why asynchronous counter must be a bit simpler version. As I can see that it has, in a 2-bit synchronous, we have two flip-flops, flip-flop A and flip-flop B, and it has a clock applied directly to flip-flop A. However, in flip-flop B, the clock is being applied through the output of the first flip-flop. So this means that clock is not being provided simultaneously to both the flip-flops. So this means that this is an asynchronous version of the clock. However, in the synchronous counter, you can see that a clock is being applied to flip-flop A separately, however, and the same clock is being applied to the flip-flop B simultaneously. Since the application of clock to both the flip-flops is in a synchronous fashion, so that's why we call it a synchronous counter. And यही एक basic reason है कि synchronous counter जो है वो fast भी है. Now इस लैब में आपने जो परफॉर्म करना है, that will be a 2-bit synchronous counter. And what type of counter? An up counter. Up counter means that it will be counting upwards. There are other types of counters as well, down counter and up down counter, जो कि both ways counting कर सकते हैं. But however,
we will be focusing on a design of an up counter in a synchronous fashion. So let's see that how we are going to design an asynchronous counter. It involves the following 5 steps, and I will tell you in detail about these steps. Right here. So मैंने यहाँ पर कुछ steps mention किए हुए हैं. The first step is to decide the number of bits as well as the number of flip-flops to be used and the type of flip-flops to be used. Now lab का title already mentioned है that we have to design a 2-bit synchronous up counter using a JK flip-flop. So this means that step number 1 is already decided. तो इसके अंदर हमें खुद से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है जब हमें प्रॉब्लम गिवन है. तो अदरवाइज़ हम लोगों को एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है दैट हमारे पास आउटपुट्स जो हैं वो किस तरह से, या हमें आउटपुट्स किस तरह की चाहिए. सो इन दैट केस हम काउंटर जो है वो किस तरह से डिज़ाइन करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इन दैट इज़ हमें नंबर ऑफ़ बिट्स डिसाइड करनी है. नंबर ऑफ़ बिट्स हमें गिवन है. नंबर ऑफ़ बिट्स आर 2. सिमिलरली जितनी नंबर ऑफ़ बिट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होंगे टू डिज़ाइन दिस काउंटर. फ्लिप फ्लॉप्स भी हम 2 ही यूज़ करेंगे. अब कौन से फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होंगे वो हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम में मेंशन कर दिए कि JK फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होंगे. इसके अलावा और फ्लिप फ्लॉप्स भी यूज़ हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम RS हम यूज़ नहीं करते, बट हाउएवर हम D या T फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं कि जितनी भी अपनी काउंटर्स डिज़ाइन करेंगे इन योर थ्योरी लेक्चर्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड देम वेल इन योर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स. तो एक चीज़ ये हो गई. और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो हैं वो क्या होंगी. दे विल बी 2 raised to power 2. यानी ये आपके पास है n, इसको हम n कह सकते हैं. तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टेट्स होंगी 2 raised to power n. तो n अगर आपके पास 2 है, नंबर ऑफ़ बिट्स अगर आपके पास 2 हैं, दैट मीन कि ये 4 स्टेट्स शो कर सकता है या ये 4 काउंटिंग कर सकता है. अब इसने काउंटिंग किस तरह से करनी है. काउंटिंग करने के लिए एक बेसिक तरीका ये है कि वो 0 से स्टार्ट करेगा एंड 2 raised to power n-1 तक जाएगा. राइट तो इस केस में जब हमारे पास 2 raised to power n मतलब 4 है, तो इन दिस केस हमारे पास काउंटिंग जाएगी 0 से 4 - 1 = 3. यानी 0 से 3 तक ये काउंटिंग करेगा, ये पर्टिकुलर काउंटर जो है. नाउ हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं. नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बता रहा है. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 है दैट वी हैव टू डिज़ाइन या डिज़ाइन नहीं, हम एक्चुअली डिराइव करेंगे एक्साइटेशन टेबल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. ऑफ फ्लिप फ्लॉप. अब फ्लिप फ्लॉप हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं. JK. नाउ एज आई प्रीवियसली सेड दैट एक्साइटेशन टेबल जो है वो और कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द सेम इंफॉर्मेशन. तो हमने लास्ट टाइम एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल एक डिराइव किया था JK फ्लिप फ्लॉप का, विच वॉज समथिंग लाइक दिस QN JK एंड आउटपुट थी हमारे पास नेक्स्ट स्टेट QN की नेक्स्ट स्टेट QN+1 एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके ऑब्वियसली 8 ही होंगे बिकॉज इनपुट्स हम 3 की फॉर्म में भी. इसको हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी बोलते हैं. राइट 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1. एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. दिस इज़ 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1. राइट तो अब हम JK फ्लिप फ्लॉप का जो हमारा ट्रुथ टेबल था उसको याद करते हुए वी ट्राई टू डिड्यूस दैट हमारे पास नेक्स्ट स्टेट QN+1 की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए बेस्ड अपॉन द प्रीवियस स्टेट. This is the previous present state. These are the inputs
J and K are the inputs and Qn plus 1 is going to be the next state. This is going to be the next state. तो inputs की values जो हैं J और K हैं आपके पास inputs 0 0. तो 0 0 के ऊपर since it will behave as a memory unit तो it will be the previous state. जो previous state थी 0 वही next state भी रहेगी. 0 1 के केस में रीसेट है, सो Qn इज़ गोइंग टू बी रीसेट टू 0. वो ऑलरेडी 0 है तो हम इसको 0 ही रहने देते हैं. 1 0 के अंदर ये सेट केस हो जाएगा तो इसका मतलब कि ये Qn इज़ गोइंग टू सेट टू 1 1 1 टॉगलिंग 1 यानी आपका Qn जो है दैट विल टॉगल टू 1 एंड 0 0 अगेन मेमोरी प्रीवियस स्टेट ही रिटेन रहेगी. 0 1 के केस में 0 1 0 के केस में 1 एंड 1 1 के केस में 0 टॉगलिंग इफेक्ट राइट. तो अब हम इसी को देखते हुए एक्साइटेशन टेबल जो है वो इसका डिराइव करते हैं. एक्साइटेशन टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप राइट. तो इसके अंदर एग्जैक्टली आप अगर एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल ले लें उसी से डिराइव कर लें या फिर आप एक्साइटेशन टेबल अलग से बना लें. एक्साइटेशन टेबल अलग से बनाने का फ़ायदा भी हम देखेंगे कि आगे क्या होगा बिकॉज़ हम उसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसके अंदर. तो उसको हम देखते हैं कि Qn प्रेजेंट स्टेट Qn प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट्स हैं इनपुट्स हैं J एंड K. तो अब हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यूज़ J और K की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए. तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 है. एंड लेट्स सी अकॉर्डिंग टू दिस कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम J और K को क्या डिराइव करते हैं. फर्स्ट केस में है Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यूज़ बोथ 0. तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यूज़ साइमल्टेनियसली 0 है. तो एक ये केस है और एक ये केस है. तो इन दोनों केसेस के अंदर Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यूज़ 0 हैं. बट हाउएवर आई सी दैट J की वैल्यू तो 0 फिक्स्ड है बट हाउएवर K की वैल्यू 0 भी है और 1 भी है. सो दिस मीन्स दैट आई कैन रिप्लेस इट विद अ डोंट केयर राइट. This is actually going to be replaced by don't care. Similarly, when I have the second case when Qn is 0 and Qn plus 1 is 1. तो ये केस थोड़ा सा मैं इसको कलर थोड़ा चेंज कर लूँ सो यू कैन डिफ्रेंशिएट इट. ये दोनों केसेस हैं जिसके अंदर Qn और Qn प्लस 1 बोथ 0 भी है और 0 है और 1 है रिस्पेक्टिवली. तो इस केस में J तो 1 है बोथ केसेस में बट हाउएवर K जो है वो 0 भी है और 1 भी है. सो इसमें मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ दैट दिस इज़ J एज 1 एंड K एज डोंट केयर राइट. तो नेक्स्ट केस है Qn एंड Qn प्लस 1 और 0. तो एक केस ये हो गया और एक केस ये हो गया. तो इन दोनों केसेस में ये थर्ड केस सेटिस्फाई हो रहा है. तो इन दोनों केसेस के अंदर J 0 भी है और 1 भी है बट हाउएवर K जो है वो सेम है. K 1 है. K इज़ 1 एंड J इज़ डोंट केयर राइट. एंड नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं जब इन बोथ आर 1. तो ये भी केस 1 1 है और ये भी केस 1 1 1 है. तो इन दोनों केसेस के अंदर J चेंज हो रहा है 0 एंड 1. तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे डोंट केयर से और K को हम 0 ही मेंशन कर देंगे क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा. तो ये हमने एक्साइटेशन टेबल जो है वो एक डिराइव कर लिया. तो इसको याद रखने का एक इजी मेथड ये भी है दैट इफ़ यू डोंट वांट टू गो थ्रू दिस होल स्टेप्स तो आप इसको सिंपली इस तरह याद कर लें कि JK का एक्साइटेशन टेबल इज़ समथिंग लाइक दिस दैट आपने फर्स्ट कॉलम 0 1 डोंट केयर एंड देन इसी कॉलम को इन्वर्टेड केस में इन्वर्ट करके आपने K में डाल देना है. दैट विल बी फ्रॉम बॉटम टू अपसाइड यानी डोंट केयर 1 0 0 1 डोंट केयर एंड देन डोंट केयर 1 0. तो कॉलम वाइज अगर आप इसको याद रख लें तो दैट विल बी ईजी. नाउ द थर्ड स्टेप हमें ये बता रहा है दैट आई हैव टू डिज़ाइन अ स्टेट डायग्राम एंड आफ्टर दैट उस स्टेट डायग्राम से मुझे एक स्टेट टेबल और एक्साइटेशन टेबल काउंटर का वो डिराइव करना है. तो अब मैं स्टेप नंबर 3 पर जाती हूँ.
दिस वन। तो स्टेप नंबर 3 में मुझे क्या करना है, दिस विल बी माय एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल नहीं है, सॉरी, एक्साइटेशन टेबल इसके बाद हम बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे स्टेट डायग्राम। थोड़ा सा बेहतर लिख दूं ताकि आपको सही से आप लोग इसको पढ़ सकें। स्टेट डायग्राम। Now, previously I already mentioned that state diagram is going to represent a counter. इस काउंटर की एक्चुअली वर्किंग ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये काउंटर जो है वो 0 से 3 तक काउंट कर रहा है। तो 0 से 3 को अगर हम बाइनरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, वाइल कीपिंग इन व्यू दैट हम 2 बिट काउंटर बना रहे हैं, तो उसके लिए हम हर बिट को या हर स्टेट को, ये इसका मतलब इसकी 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं, तो 4 पॉसिबल स्टेट्स को हम 2 बिट्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हम स्टेट डायग्राम बनाने के लिए जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, यानी हमने प्रीवियसली पहले ही डिसाइड कर लिया स्टेप नंबर 1 में ही कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं दैट वाज 4, यानी 2⁻² था। तो जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं हम उन्हें उतने ही बबल्स बना लेने हैं। दिस थोड़ा सा डिस्टेंस रख के बनाती हूँ मैं। दिस 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 एंड दिस, राइट। एंड this is my state 0, this is my state 1, and this is state 2, and this is state 3। ठीक, तो स्टेट 0 को रिप्रेजेंट, यानी स्टेट 0 की काउंटिंग स्टार्ट करेगा 0 से, राइट, एंड स्टेट 3 जाएगा काउंट 3 तक, उसके बाद वो स्टेट 0 पर वापस आ जाएगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी मेरा काउंटर स्टार्ट हो रहा है 0 से, फिर वो 1 पर जा रहा है, यहाँ मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूँ, 0 है, 1 है, 2 है, ये मेरा काउंटर हर क्लॉक के साथ अपडेट हो रहा है। उसके बाद वो स्टेट 3 पे इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 3, और उसके बाद वो रीसेट हो जाएगा टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो मैं अब इन बबल्स को फिल अप करने की कोशिश करती हूँ विद द नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास 2 है, तो मैंने 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 0 प्लेस किया। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेट पर नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी 0 1, यानी अब इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1, तो 1 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करके 0 1 लिख दिया। सिमिलरली 2 की बाइनरी हो जाएगी 1 0, एंड 3 की बाइनरी हो जाएगी 1 1। अब मुझे देखना है कि इन सब स्टेट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप है दैट आफ्टर द फर्स्ट क्लॉक, व्हेन क्लॉक इज़ इक्वल टू 1, मैंने क्लॉक का नाम रख दिया है x। व्हेन क्लॉक इज़ 1, तो एक क्लॉक गुजर गई, तो उसके बाद ये स्टेट 0 से इट विल पॉइंट टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट है S1 which value is whose value is 0 1। आफ्टर अनदर क्लॉक, यानी अभी आपकी x इक्वल्स अगेन 1 हुई, तो इन दैट केस इट विल अगेन पॉइंट टू द नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट है S2 एंड इट्स वैल्यू इज़ 1 0। आफ्टर अनदर क्लॉक x इक्वल्स 1, तो आपके पास ये उससे नेक्स्ट स्टेट पर चला जाएगा, दैट इज़ S3 1 1। और आफ्टर दैट अब जब एक और क्लॉक गुजरेगी x इक्वल्स 1, तो इन दैट केस आपने ये वापस अपने काउंटर जो है उसको रीसेट कर लेगा। ठीक है। नाउ एक और कंडीशन है कि जस्ट इन केस अगर आपकी क्लॉक जो है वो अपडेट नहीं हो रही, राइट, इफ़ योर क्लॉक इज़ x इक्वल्स 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दैट केस दिस स्टेट विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स इट्स ओन सेल्फ, यानी ये अपने आप को ही पॉइंट कर रही है। तो इसका मतलब कि अगर मेरे पास क्लॉक जो है वो अपडेट नहीं हो रही समहाउ, ये मेरे पास एक कंट्रोल सिग्नल, आप इसको क्लॉक कह लें या एक कंट्रोल सिग्नल कह लें, ये कंट्रोल इनपुट है। आप इसको बेशक क्लॉक की फॉर्म में ना लें क्योंकि दैट विल बी अ बिट डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैन दैट। तो हम इस कंट्रोल इनपुट को अगर हम x इक्वल्स टू 0 ही रखते हैं, तो दैन इन दैट केस इट विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स इट्स ओन सेल्फ। सिमिलरली यहाँ पर
it will be pointing, when x is 0, it will be pointing towards itself, right? It will be pointing towards itself, and right in this case x will be 0, then it will be pointing towards its own self. तो अब अकॉर्डिंग टू माई, यहाँ तक मेरा स्टेट डायग्राम, मैंने अपने काउंटर को इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेट डायग्राम रिप्रेजेंट कर लिया है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मुझे एक स्टेट डायग्राम बनानी है. वो स्टेट डायग्राम नहीं, मुझे एक स्टेट टेबल बनाना है जो एक्चुअली मुझे रिप्रेजेंट करके बताएगा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल लॉजिक्स कि मैंने इसी स्टेट डायग्राम को एक और डिफरेंट, मैंने इंफॉर्मेशन तो सेम है, जो इंफॉर्मेशन मुझे स्टेट डायग्राम दे रहा है वही इंफॉर्मेशन मुझे स्टेट टेबल देगा, लेकिन स्टेट टेबल जो है एक मोर रीडेबल फॉर्म है जो कि एक लेमैन भी शायद समझ सकता हो, या जो आपने अगर इससे पहले जो ट्रुथ टेबल्स पढ़े हैं दैट विल बी अ सिमिलर फॉर्म इन दैट केस, कि हम ट्रुथ टेबल की फॉर्म में सॉर्ट ऑफ इसी इंफॉर्मेशन को हम डिराइव कर लेते हैं. तो उसके लिए हम स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं. दिस इज स्टेप नंबर 4, जिसके अंदर हम एक स्टेट टेबल डिराइव करते हैं इसी इंफॉर्मेशन से. तो इस स्टेट टेबल के अंदर मेरे पास एक है वैल्यू ए और एक है बी. ए और बी एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बोथ फ्लिप फ्लॉप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 2 बिट्स हैं. सो दैट मीन्स कि मेरे पास फ्लिप फ्लॉप्स भी 2 ही यूज़ हो रहे होंगे. तो इन फ्लिप फ्लॉप्स को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है ए, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है बी. ए और बी, राइट. दिस इज़ माई प्रेजेंट स्टेट, दिस इज़ माई नेक्स्ट स्टेट. ये इन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ये मेरी इनपुट्स आउटपुट्स हैं, इनकी इन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स हैं. तो इनकी प्रेजेंट स्टेट क्या है और नेक्स्ट स्टेट क्या है. तो उसके लिए मैं इसी स्टेट डायग्राम को रिविजिट करती हूँ एंड आई सी दैट मेरे पास जब इनपुट स्टेट है 0 0, तो नेक्स्ट स्टेट की भी 2 डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स हैं, पॉसिबल पोजिशंस हैं. एक है व्हेन x इज़ 0 एंड एक है व्हेन x इज़ 1, बिकॉज हमने एक कंट्रोल सिग्नल भी यहाँ पर दिया हुआ है विच इज़ x. तो मेरे पास प्रेजेंट स्टेट है 0 0. लेट सपोज आई एम एट दिस स्टेट नंबर 0, एंड इसके ऊपर मेरे पास a और b की वैल्यूज़ हैं 0 0. तो व्हेन x इज़ 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, मेरे पास जब x 0 है तो इसके अकॉर्डिंग इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स इट्स ओन सेल्फ. तो दिस मीन्स दैट नेक्स्ट स्टेट भी यही रहेगी 0 0, राइट, कि ये काउंटिंग कर नहीं रहा, नेक्स्ट क्लॉक पर नहीं जा रहा. तो सिमिलरली व्हेन वी हैव x इक्वल टू 1, अब हमारे पास x 1 हो गया, तो अब ये मूव कर जाएगा नेक्स्ट स्टेट पे. नेक्स्ट स्टेट क्या है, S1. S1 की वैल्यू है 0 1, राइट. सिमिलरली वी हैव 0 1. अब करंट स्टेट हमारी हो गई है प्रेजेंट स्टेट, दिस वन S1. तो S1 में जब x 0 है तो देन इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स इट्स ओन सेल्फ, एंड व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 देन इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स S2. S2 की वैल्यू है 1 0. एंड नाउ आई हैव 1 0. करंट स्टेट अब मेरी ये वाली हो गई है S2. S2 में जब मेरे पास x 0 है, मेरा कंट्रोल सिग्नल 0 है, तो इन दैट केस इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स इट्स ओन सेल्फ, यानी ये सेम स्टेट में रहेगा. एंड व्हेन x इक्वल टू 1 देन इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज़ 1 1. सिमिलरली व्हेन आई हैव 1 1 as a last input, so when x equals to 1 then it is pointing towards its own self, and when x equals to 1 then it is pointing towards the next state है इसकी 0 0. तो मेरे पास स्टेट टेबल बन गया. अब इस स्टेट टेबल को देखते हुए मुझे बनाना है एक्साइटेशन टेबल. एक्साइटेशन टेबल जो है वो दैट विल बी गिविंग वेरी सिमिलर इन्फॉर्मेशन, बट हाउएवर उसके अंदर हम जे के फ्लिप फ्लॉप्स जो मुझे यूज़ करने हैं, एक फ्लिप फ्लॉप ए है और एक फ्लिप फ्लॉप बी है, उनका नाम मैंने अपनी मर्ज़ी से रखा हुआ है. तो उन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की पॉसिबल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा और उनकी इनपुट्स और आउटपुट्स हम किस तरह से डिराइव करेंगे, तो वो हम देखते हैं. तो उसके लिए मुझे इस नेक्स्ट स्टेज पर जाना है, एंड दैट इज़
क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी अब मेरे एक्साइटेशन टेबल जे के फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल की, तो मैं इसको यहाँ बना लेती हूँ सो दैट आई हैव अ व्यू ऑफ दैट एज वेल। और स्टेट टेबल भी मुझे अपने सामने रखना है। राइट, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ, तो अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5 कह लें या चलें, मैं इसको एक्चुअली सेम ही स्टेप कंसिडर कर रही हूँ। दिस इज़ पार्ट बी ऑफ 4B। स्टेप नंबर 4 का पार्ट बी है, विच इज़ टू डिराइव एक्साइटेशन टेबल फॉर काउंटर। तो उसके लिए मेरे पास अब इनपुट्स हो गई हैं। मैं अब जो मेरा कंट्रोल सिग्नल है इसको इनपुट का पार्ट बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे अपना एक्साइटेशन टेबल जो है उसको इन्वॉल्व करना है अब विद द कंट्रोल सिग्नल। अगर मैंने कंट्रोल सिग्नल ना दिया होता तो इन दैट केस मैं एक्स फैक्टर को इंक्लूड ना करती। बट हाउएवर जब आप इसको थ्योरीज़ की फर्दर देखेंगे तो आपको इसको बेहतर समझ में आ जाएगा। नाउ इन दिस केस दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू माई स्टेट टेबल जो मैंने बनाया हुआ है, इसी के बिल्कुल सिमिलर बनेगा ये भी। तो उसके लिए मेरे पास है एक प्रेजेंट स्टेट जिसके अंदर है एक्स, ए, बी and x, and then I have next state इन्हीं की a और b। यानी अब मैं नेक्स्ट स्टेट के अंदर ज़ाहिर कंट्रोल सिग्नल तो की वैल्यूज़ तो नहीं देखूंगी, मुझे सिर्फ ये मेरी इनपुट्स हैं, ये मेरा कंट्रोल सिग्नल है, और इन दोनों इनपुट्स की मैंने नेक्स्ट स्टेट देखनी है a और b। ठीक है, और उसके बाद मुझे डिराइव करना है कि मेरे पास जे ए विच इज़ द आउटपुट इनपुट्स ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हैं। एंड ऑल्सो मुझे देखना है कि जे ए नहीं एक्चुअली होगा, ये जे ए एंड के ए, यानी ये मेरे पास फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हैं। सिमिलरली सेकेंड फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स होंगी जे बी एंड के बी। तो लेट्स सी, मेरे पास जो फर्स्ट कॉलम है इसकी पॉसिबल 80 कॉम्बिनेशंस बना लेती हूँ। 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो लेट्स सी दैट व्हेन आई हैव ये एक्साइटेशन टेबल जो है ना, अब आपने अपने सामने रखना है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू डिसाइड दैट मेरे पास जे ए और के ए और जे बी और के बी की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो नेक्स्ट स्टेट तो हम इसी स्टेट टेबल से डिराइव कर लेते हैं। व्हेन आई हैव ए एंड बी एज 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, एंड एक्स 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो इन दिस केस नेक्स्ट स्टेट इज़ गोइंग टू बी द सेम, यानी वो अपने आप को पॉइंट कर रहा है, और जब व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 तो वो नेक्स्ट स्टेट को पॉइंट कर रहा है। Similarly, when I have 0 1 as AB and x is 0, then it is pointing towards itself, and when x is equal to 1 then it is pointing toward next state, and when I have 1 0 then it is, when x is 0 is pointing towards itself, and when I have 1 then it is pointing toward next state। थोड़ी सी स्पेस में कमी आ गई है। राइट, तो दिस इज़ गोइंग टू बी ज़्यादा ये क्लोज हो गया है। राइट, when I have 1 1 then it is going to point towards itself, and when I have 1 1 and x is also 1 then it is pointing towards the next state। अब हम देखते हैं इस एक्साइटेशन टेबल के ज़रिए जे ए और के ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एज आई ऑलरेडी
told you that JA and KA are the inputs of the first flip flop. तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए मैंने क्या करना है कि इस A का कॉलम और इस A का कॉलम, यानी मैं A की, यानी A इज़ रिप्रेजेंटिंग माय फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, A की प्रेजेंट स्टेट भी देख रही हूँ और नेक्स्ट स्टेट भी देख रही हूँ. दिस इज़ द प्रेजेंट स्टेट एंड Qn+1 इज़ द नेक्स्ट स्टेट. तो मैं इनको, इस A को Qn और Qn+1 से रिलेट करने की कोशिश करती हूँ, एंड आफ्टर दैट आई सी दैट J और K की आउटपुट्स क्या आ रही हैं. नाउ इन द फर्स्ट केस आई हैव A की प्रेजेंट स्टेट है 0 एंड A की नेक्स्ट स्टेट है 0. फर्स्ट रो में मैं अभी देख रही हूँ. तो इस फ्लिप फ्लॉप, ये जो आपका एक्साइटेशन टेबल है, इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, तो J और K की आउटपुट्स क्या आएंगी, 0 एंड डोंट केयर. तो मैं JA और KA की वैल्यूज़ क्या लिख दूँगी, 0 एंड डोंट केयर. सिमिलरली आई हैव 0 एंड 0 एज बोथ एज प्रेजेंट एंड नेक्स्ट स्टेट, तो अभी भी ये सेम ही रहेंगी, राइट. 0 एंड डोंट केयर. अगेन ये भी अभी सेम है, तो ये 0 एंड डोंट केयर रहेगी. अब थोड़ी सी चेंज आ रही है. अब मेरे पास A की प्रेजेंट स्टेट है 0, नेक्स्ट स्टेट है 1. तो इस एक्साइटेशन टेबल में देखती हूँ कि व्हेन आई हैव प्रेजेंट स्टेट एज 0 एंड नेक्स्ट स्टेट एज 1, तो J और K की वैल्यू आ रही है 1 और डोंट केयर. तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 एंड डोंट केयर. अब अगेन मेरे पास कुछ चेंज आ रहा है. उसके अकॉर्डिंग A की प्रेजेंट स्टेट है 1 और A की नेक्स्ट स्टेट भी 1 है. तो ये मेरे पास लास्ट केस बन जाएगा. प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट बोथ 1 है, तो इन दैट केस मेरे पास आउटपुट्स आ रही हैं J और K की डोंट केयर 0, डोंट केयर 0. सिमिलरली ये यहाँ तक डोंट केयर 0 ही रहेगा, बिकॉज सब केसेस में प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट सेम है. अब लास्ट केस के अंदर 1 0 आ रहा है, यानी A की प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट 1 है और 0 है. तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि ये है मेरे पास, दिस इज़ थर्ड लास्ट केस है. इसके अंदर मेरे पास आउटपुट आ रही है डोंट केयर 1, राइट. अब सिमिलरली मुझे J, B और K, B को डिराइव करना है, तो उसके लिए मैं सिर्फ B वाला कॉलम देखूँगी, ये B वाला कॉलम देखूँगी और B की नेक्स्ट स्टेट वाला कॉलम देखूँगी. तो उस केस में मैं देख रही हूँ कि व्हेन आई हैव 0 एंड 0, तो यहाँ पर 0 प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, आउटपुट पे आ जाएगा 0 डोंट केयर. एंड अगेन 0 1 आएगा जब मेरे पास प्रेजेंट स्टेट है 0 एंड 1. तो इस केस के अंदर 0 एंड 1 डोंट केयर आ जाएगा, 1 डोंट केयर. ठीक हो गया. अब मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ. 1 एंड 0, 1 एंड 1, 1 एंड 1 की आउटपुट आ रही है डोंट केयर 0. यहाँ पे ये 1 डोंट केयर है. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं 1 0. B की प्रेजेंट स्टेट है 1 और नेक्स्ट स्टेट है 0. B की प्रेजेंट स्टेट है 1 और नेक्स्ट स्टेट 0, इसके लिए आउटपुट आएगी डोंट केयर 1. सिमिलरली आई हैव 0 0, 0 0 के केस में 0 डोंट केयर, एंड देन आई हैव 0 1, 0 1 के केस में 1 डोंट केयर, एंड देन आई हैव 1 1, 1 1 के केस में डोंट केयर 0, एंड लास्ट है 1 0, 1 0 के केस में डोंट केयर 0. डोंट केयर 0. तो अब मेरे पास JA और KA और JB और KB की पॉसिबल आउटपुट्स आ गई. तो अब इन्हीं को देखते हुए मेरे पास ये इनपुट्स हैं, दीज आर द इनपुट्स, और दीज आर द नेक्स्ट स्टेट्स. नेक्स्ट स्टेट्स को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने जो आपने उसको डिराइव करना है के मैप से. के मैप के लिए मुझे सिंपली 8 बॉक्सेस चाहिए होंगे. one is A, then B and X, 0 1,
00011110। तो मैं अब सबसे पहले ये मैं फिलअप कर रही हूँ JA के लिए। मुझे मेरी 4 आउटपुट्स हैं तो 4 ही पॉसिबल के मैप्स बनेंगे, तो JA मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब मैं अपने सेकंड लास्ट स्टेप की तरफ आ गई हूँ। दिस स्टेप इज़ एक्चुअली माय स्टेप नंबर 5, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, बुलियन एक्सप्रेशंस डिराइव करनी है। तो बुलियन एक्सप्रेशंस के लिए मैं अब JA के लिए इसको फिलअप करती हूँ। दिस विल बी इक्वल टू 0 0 0 1 एंड डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर। तो मैं इसकी ग्रुपिंग करती हूँ एंड आफ्टर दैट आई फाइंड आउट दैट JA इज़ इक्वल टू BX। सिमिलरली आपने KA के लिए बनाना है, JB के लिए बनाना है और KB के लिए बनाना है। एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है, जब आपने 4 इक्वेशंस बना ली, JA के लिए भी, KA के लिए भी और JB के लिए भी, तो अब आपने फ्लिप फ्लॉप्स को लेकर सर्किट किस तरह से डिज़ाइन करना है। फ्लिप फ्लॉप की शक्ल कुछ आपकी मल्टीसिम में इस तरह से होगी। ये लेट्स सपोज आपका है फ्लिप फ्लॉप, 2 फ्लिप फ्लॉप्स आप लेंगे बिकॉज 2 बिट्स आपने काउंटर बनाना है। एंड ये आपकी क्लॉक हो जाएगी। दिस इज़ गोइंग टू बी योर क्लॉक। क्लॉक को आपने अप्लाई करना है फंक्शन जनरेटर से, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ आपने किस तरह से यूज़ करना है। एंड ये आपकी हो गई इनपुट्स JA एंड KA। ये आपकी सेकेंड फ्लिप फ्लॉप की, ये फ्लिप फ्लॉप A है, ये आपका फ्लिप फ्लॉप B है। दिस इज upper part is the JB and lower is the KB। तो अब according to this equation JA is equal to BX, यानी इनकी आउटपुट सब क्या है, दिस इज़ गोइंग टू बी A, दिस इज़ गोइंग टू बी B। आपके जो मल्टीसिम में जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी आउटपुट्स के नाम है Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से इनके नाम चेंज कर दिए हैं बिकॉज आपके लैब मैनुअल में जो आपकी फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स हैं उनके नाम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर दिए गए हैं। सो इट डज़ंट मैटर आप उनकी टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ करते हैं। असल मकसद आपका ये है कि फ़र्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है A और उसकी सेकेंड आउटपुट होगी A कॉम्प्लीमेंट, और सेकेंड फ्लिप फ्लॉप की एक आउटपुट है B और दूसरी है B कॉम्प्लीमेंट। काउंटर के डिज़ाइन में आपका A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का कोई ख़ास इस वक्त रोल नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन में भी कहीं डराइव नहीं हो रहे। तो फर्स्ट इक्वेशन बन रही है JA, मतलब कि JA की इनपुट कहाँ से आ रही है, B यानी सेकेंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट, एंड इसको डॉट करना है मुझे X के साथ। दिस इज़ गोइंग टू बी माई X मुझे एक इंटरैक्टिव डिजिटल कांस्टेंट के साथ देना है और इसकी आउटपुट आ जाएगी J पे। सिमिलरली KA की क्या वैल्यू आ रही है, आपने इसी तरह वो वैल्यू बनाकर KA के अंदर इनपुट देनी है। मैंने आपकी आउटपुट्स आपकी स्लाइड्स में मेंशन कर दिया है कि KA इज़ आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू JA। तो इसका मतलब कि आपको यहीं से ये दोनों इनपुट्स जो है शॉर्ट करके JA और KA को सप्लाई करनी है, ठीक है। सिमिलरली JB की वैल्यू क्या आ रही है और KB की वैल्यू क्या आ रही है, आपने वही वैल्यू इन K मैप से डिराइव करने के बाद वो आपने इनपुट पर सप्लाई करनी है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आपने जो A और B जो आउटपुट्स हैं इनके साथ आपने LEDs लगानी है। ये LEDs आपको काउंटर की वैल्यू शो करके बताएंगी। A जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट इनपुट एंड B इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड इनपुट। तो मैंने आपको मल्टीसिम में यहाँ पर बनाया हुआ है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। एंड इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एक ही है, दिस इज़ द फंक्शन जनरेटर। दिस इज़ द फंक्शन जनरेटर। ये आपने कहाँ से लेना है, फ्रॉम हियर। ये आपको राइट हैंड साइड के ऊपर एक कॉलम नज़र आ रहा है जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। मल्टीमीटर है एंड सेकंड वन इज़ द फंक्शन जनरेटर। यू क्लिक इट एंड इट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन।
तो आपने इसको ड्रॉप करना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि इनपुट के ऊपर आपने अप्लाई करना है पॉजिटिव साइड से। पॉजिटिव आपकी पॉजिटिव पल्स जनरेट करेगी और नेगेटिव आपकी नेगेटिव पल्स जनरेट करेगी। आपको पॉजिटिव की ही ज़रूरत है, तो सो यू विल अप्लाई इट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। एंड COM इज़ योर एक्चुअली कॉमन पॉइंट, जिसको आपने ग्राउंड अप्लाई करना है। और इसकी आप सेटिंग्स भी देख लें इनपुट पे, मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो रखी है। लो रखने का मकसद ये है बिकॉज़ फ्रिक्वेंसी जितनी हाई होगी आपको काउंटर की जो वर्किंग है वो इतनी इतनी तेज़ी से गुजरेगी कि आप उसको सही से परसीव नहीं कर सकेंगे। सो फ्रिक्वेंसी को लो रखें ताकि काउंटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यूज़ चेंज करे। एंड एम्पलीट्यूड आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं सेट की हैं। राइट, अब मैं देखती हूँ, मैं इसको सिमुलेट करती हूँ। एंड Q1 इज़ गोइंग टू बी राइट, ये मेरा x था, x की वैल्यू अब मैं 1 कर देती हूँ। तो अब मेरे पास काउंटर जो है वो ऑपरेट करेगा। राइट, 0 then 1 1 0 then 1 1, right? So this is how you're going to design a JK flip-flop counter. So I hope that this concept is quite clear to you now, that and if you have any questions then you can discuss with your teacher. तो स्लाइड्स भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ एंड इसके अंदर आपको स्टेप्स तो समझ में आ गए। आफ्टर दैट द एक्साइटेशन टेबल हमने डिराइव किया एंड आफ्टर दैट स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम को देखते हुए हमने स्टेट टेबल डिराइव किया एंड स्टेट टेबल को देखकर हमने एक्साइटेशन टेबल बनाया। और उसके बाद हमने के मैप सिंप्लीफिकेशन की एंड आफ्टर दैट हमने ये JK फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन मल्टीसिम एंड टास्क मैंने क्लियरली मेंशन कर दी है। So I hope that today's lecture has been clear to you all. Inshallah, I will talk to you in your lecture. Allah Hafiz.